Hello students. In previous lecture we discussed about definition of memorandum of association, and also we discussed about the characteristics of memorandum of association. Today we are going to learn about importance of memorandum of association. So, what is memorandum of association? Memorandum of Association is a fundamental document of a company which determines the area of working of the company, and the objective of Memorandum of Association is to provide information about the objectives of company to the shareholders, creditors, government, and also customers. तो लास्ट टाइम हमने डिस्कशन किया था कि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन क्या है. तो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन जो है, इट इज़ अ फंडामेंटल डॉक्यूमेंट ऑफ एवरी कंपनी एंड इट शोज रिलेशन between a third party and which determine the area of working of company. तो आज डिस्कशन करते हैं क्या इसका इम्पोर्टेंस है. सो हियर कॉन्सेंट्रेट. इट इज अ कंपल्सरी for every company under the Companies Act to get its memorandum of association registered. It gives basic information about the company which is important for the following parties. So as we discussed in our previous lecture, memorandum of association is a compulsory for every company, whether it is a private company or a public company. Whenever any person want to register company, so two documents are very much important. First is a memorandum of association and second is the articles of association. So as per Companies Act, New Companies Act 2013, every company has to register their memorandum of association, and this memorandum of association provide the basic information about the company, like name of company, like registered office of a company, what about capital, how much company acquired capital, what is the liabilities of shareholders, objective of company, and who are the promoters of the company. It total information provided in memorandum of association. तो जो कंपनी का मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन है, उसके अंदर कंपनी की जितनी भी बेसिक इंफॉर्मेशन है, जैसे कंपनी का नाम क्या है, कंपनी की रजिस्टर्ड ऑफिस कहाँ पर है, कंपनी को कितनी कैपिटल की रिक्वायरमेंट है, उतने कितने शेयर इश्यू किए हैं, जो भी शेयर परचेस करेंगे शेयर होल्डर उनकी लाइबिलिटीज क्या होगी, कंपनी का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, वो इज द फर्स्ट डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी, वो सब बेसिक इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के अंदर है. अब देखते हैं इसका इंपॉर्टेंस क्या है. फर्स्ट, फॉर अ कंपनी, कंपनी के लिए क्या इंपॉर्टेंस है. इट इज अ फंडामेंटल डॉक्यूमेंट फॉर एवरी कंपनी. इट फॉर्म्स द बेस ऑफ अ कंपनी. Memorandum of Association shows the constitution as well as area of affairs of a company. It contains the name, objects, capital, liabilities, state of the registered office, etc. If a company does not any act
contrary to its objective given in its memorandum of association. The same is called Ultra-Virus Act. This document also contains the information like official capital of a company, liabilities of a company, limited or unlimited. So, memorandum of association is important for four purposes. First, for a purpose of company, for the creditors, traders, bank. It is also useful provided information to shareholders, and it is also useful for public. So now what is the importance for company? So as we discussed earlier, memorandum of association जो है, it's a fundamental document. Fundamental means it's a base. जैसे आप कोई घर बनाते हो तो उसका बेस, उसका फाउंडेशन बनाते हो, उस पर आपका घर रहता है। तो वैसे ही कंपनी का जो मेन है वो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन है। कोई भी कंपनी ले लो, वेदर इट इज लिमिटेड और अ प्राइवेट लिमिटेड और अ फॉरेन कंपनी, दिस इज द मेन फंडामेंटल डॉक्यूमेंट्स एंड इट फॉर्म्स द बेस ऑफ अ कंपनी। ये बेस है कंपनी का। एंड मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन इट्स अ कॉन्स्टिट्यूशन। Constitution is rules and regulation which company has to follow in future. So this is the main, and it is memorandum of association decided the area of affairs of company. कंपनी का जो काम है वो स्कोप कहाँ पर रहेगा। वो रीजियोनल कंपनी है कि भाई गुजरात स्टेट के अंदर ही काम करेगी, या पूरे इंडिया के अंदर काम करेगी, या मल्टीनेशनल कंपनी होगी, उसका अदर कंपनी के अंदर भी सेलिंग होगा। जैसे एलजी है, सैमसंग है, एप्पल्स है, माइक्रोसॉफ्ट है, वो मल्टीनेशनल कंपनी है। तो उनका जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन होगा उसमें लिखा होगा कि अवर कंपनीज एरिया ऑफ अफेयर्स दैट इज इंटरनेशनल, पूरे वर्ल्ड के अंदर वो बिजनेस करेगी। एंड मेन इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड फॉर कंपनी दैट इज नेम। कंपनी का नेम क्या होगा वो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में लिखा होगा। कोई भी कंपनी है तो अभी जो एग्जिस्टेंस कोई कंपनी है उसका नाम नहीं रख सकती, डिफरेंट रखना पड़ेगा। अगर उनकी कंपनी पब्लिक में शेयर इश्यू किया है, सो एट द एंड ऑफ कंपनी लिमिटेड वर्ड होगा। अगर उसने मार्केट में शेयर इश्यू नहीं किए हैं तो प्राइवेट लिमिटेड लिखा होगा। मेन द इम्पोर्टेंस दैट इज ऑब्जेक्टिव ऑफ कंपनी, व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्ट बिहाइंड द कंपनी। Like LG, Samsung, they engaged in electronics item. Apple is also engaged in electronics item. Microsoft company produces different kind of software in whole the world. Like Asian Tiles Limited, the main object to produce is ceramic items. So main object is given in memorandum of association. एंड कोई भी कंपनी जो है उसके जो ऑब्जेक्ट डिसाइड किया है उसके अलावा कोई काम नहीं कर सकती। अगर उसके अलावा उसने कोई काम किया सो दैट इज कॉल्ड अल्ट्रा वायरस। जैसे एशियन टाइल्स लिमिटेड है, उसके मेमोरेंडम में लिखा होगा कि हम प्रोडक्शन टाइल्स का करेंगे, सिरामिक आइटम का करेगा, और उसने सडनली इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम का प्रोडक्शन स्टार्ट कर दिया, सो दिस इज द अगेंस्ट ऑफ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, बिकॉज व्हेन दे इश्यूड अ शेयर इन द मार्केट, एट दैट टाइम देयर मेन ऑब्जेक्ट is ceramic item. Now they produces electronics item. It is against of memorandum of association and it is called ultra virus. क्योंकि जब उन्होंने मेमोरेंडम बनाया था उसमें लिखा था कि उनका मेन जो पर्पस है
वो सिरामिक आइटम का है और अभी सपोज वो इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम का प्रोडक्शन स्टार्ट कर देते हैं, सो दैट इज अगेंस्ट अ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, सो इट इज कॉल्ड अल्ट्रा वायरस। तो उसके लिए जो कंपनी के डायरेक्टर्स हैं उसको जेल हो सकती है या पेनल्टी लग सकती है। एंड इन मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन also provide the capital, how much capital required for company, कितनी कैपिटल चाहिए, व्हाट इज द लाइबिलिटीज ऑफ शेयर होल्डर्स, कंपनी के जो शेयर परचेस करेंगे शेयर होल्डर उनकी लाइबिलिटीज क्या होगी, लिमिटेड होगी या अनलिमिटेड होगी। एंड रजिस्टर्ड ऑफिस, कंपनी की रजिस्टर्ड ऑफिस कौन से स्टेट के अंदर है वो डिसाइड करना पड़ेगा आपको। जैसे रिलायंस इंडस्ट्रीज है, उसकी हेड ऑफिस मुंबई के अंदर है। एशियन टाइल्स है, उसका मैन्युफैक्चरिंग यूनिट हिम्मतनगर में है, लेकिन उसकी रजिस्टर्ड जो ऑफिस है वो अहमदाबाद के अंदर है, तो वो भी लिखना पड़ेगा कि यहाँ पर है। एंड उसके अंदर कंपनी की कितनी ऑफिशियल कैपिटल होगी, 2 करोड़, 5 करोड़, 500 करोड़, 5,000 करोड़, 10,000 करोड़, वो सब उसके अंदर मेंशन करना पड़ेगा। उससे आप ज़्यादा कैपिटल एक्वायर नहीं कर सकते। एक बार आपने मेमोरेंडम में लिख दिया कि भाई हमारी ऑफिशियल कैपिटल 500 करोड़ है, तो आप लाइफ टाइम उससे ज़्यादा शेयर इश्यू नहीं कर सकते, उससे ज़्यादा फंड आप एक्वायर नहीं कर सकते। सो दिस यूजफुल इंफॉर्मेशन लाइक नेम, ऑब्जेक्ट, कैपिटल, लाइबिलिटीज is provided in memorandum of association, and it gives very much important about company. Now second, importance for the creditors and traders bank. Memorandum of association determines the relation of a company with the third parties after having known the proposed activities of a company. Creditors, traders, bank decided whether to lend money to the company or not. So memorandum of association, it provides also useful information for creditors or bank whether to lend a money to the company. कोई भी creditors है। Now what is creditors? A person who provides goods or service on credit, such person is known as creditors. सो क्रेडिटर्स को अगर कंपनी को क्रेडिट में देना है तो उसको देखना पड़ेगा कि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में ऐसा मेंशन है कि कंपनी क्रेडिट में गुड्स या सर्विस परचेस कर सकती है। कई कंपनी ऐसी होती जो कैश में ही बिजनेस करती है, तो वो भी देखना पड़ेगा। बेसिकली मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन डिटरमाइंस द रिलेशन ऑफ अ कंपनी विथ थर्ड पार्टीज। जो भी थर्ड पार्टीज है, क्रेडिटर्स, मर्चेंट बैंक्स है, उसके लिए इंफॉर्मेशन है। कोई भी कंपनी है, अगर उसको कंपनी को लोन देना है तो देखना पड़ेगा उसकी मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन है, उसमें कैपिटल जो क्लोज है उसके अंदर लिखा है कि कंपनी बैंक से लोन ले सकती है और कौन से टाइम पीरियड के अंदर ले सकती है, वो उसको देखना पड़ेगा। अगर उनके मेमोरेंडम में लिखा है कि अगर कंपनी डू नॉट हैविंग सफिशिएंट कैपिटल दे बोरोड मनी फ्रॉम बैंक, अगर ऐसा लिखा है मेमोरेंडम में तो कंपनी बैंक से लोन ले सकती है। अगर ऐसा मेंशन नहीं किया है तो कोई भी कंपनी बैंक से लोन नहीं ले सकती, क्रेडिट में परचेस कर सकती है। अगर ऐसा मेंशन किया है तो वो क्रेडिटर्स पे गुड्स ले सकती है। सो creditors and traders bank decide whether to lend money to the company or not। तो मेमोरेंडम से उनको इंफॉर्मेशन मिलेगी कि कंपनी को मनी लैंड पर देना चाहिए या नहीं देना चाहिए, वो डिसाइड कर सकते हैं।
Third thing, for shareholders of a company, the shareholders are assured that the fund invested by them shall be utilized only for the activities specified in the memorandum of association of company. If company does not function as per the memorandum, the same can be challenged before the court. Shareholders feel secure with the determination that the liability will be limited to the extent of the amount of the share purchased by them. So memorandum of association, it is useful for shareholders. शेयर के लिए बहुत इंपॉर्टेंस है, क्योंकि जब शेयर होल्डर ने अमाउंट इन्वेस्ट किया था तो कंपनी के ऑब्जेक्ट में लिखा था कि कंपनी का मेन पर्पस क्या है, तो वो एश्योर, उनको एक एश्योरेंस मिल जाएगा कि भाई हमने जिस पर्पस से इन्वेस्टमेंट किया था कंपनी वही एक्टिविटी के अंदर प्रोडक्शन और सेलिंग कर रही है। जैसे एशियन टाइल्स कंपनी ने जब शेयर इश्यू किया था तो उसके मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में लिखा था कि द मेन पर्पस ऑफ एशियन सिरामिक टू प्रोड्यूस इज सिरामिक आइटम। तो जो शेयर होल्डर जिसने एशियन कंपनी के शेयर परचेस किए थे उनको श्योरिटी मिलेगी कि भाई हमारा जो फंड हमने इन्वेस्ट किया था वो फंड का यूज कंपनी सिरामिक आइटम के प्रोडक्शन में ही लगाएगी। एंड इफ एनी कंपनी does not function as per the memorandum, so it is called ultra virus and shareholder can be challenged in the court। अगर कंपनी का ऑब्जेक्ट सिरामिक आइटम का है, उससे उसने पब्लिक से फंड लिया है, शेयर होल्डर से लिया है, और अगर उसने इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम का प्रोडक्शन चालू कर दिया तो कोई भी शेयर होल्डर कंपनी के अगेंस्ट कोर्ट में केस कर सकता है कि भाई उनका ऑब्जेक्ट तो सिरामिक आइटम था, अब वो इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम का प्रोडक्शन कर रहे हैं। तो जो भी कंपनी के डायरेक्टर्स हैं, मैनेजिंग डायरेक्टर, उनको जेल हो सकती है या हैवी पेनल्टी उनको पे कर सकते हैं। एंड ऑल्सो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन प्रोवाइड द इंफॉर्मेशन to shareholders whether their liabilities will be limited or unlimited. But most of the India's company, it is a limited company. Shareholder liabilities will be limited। उसका मतलब क्या हुआ? जैसे आपने एशियन टाइल्स कंपनी है, उसके अंदर 10,000 रुपीज इन्वेस्ट किया तो आपकी लाइबिलिटी सिर्फ 10,000 की हुई। मतलब इन फ्यूचर सपोज कंपनी इंसॉल्वेंट हो गई या कंपनी जो है उसकी लाइबिलिटीज एसेट से भी ज़्यादा हो गई, कंपनी इंसॉल्वेंट हो गई, तो वो पेमेंट करने के लिए जो शेयर होल्डर है उनको पर्सनल एसेट बेचने की रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि उनकी लाइबिलिटी लिमिटेड है। तो ये अच्छा है कि शेयर होल्डर श्योर हो जाएंगे भी हमारा जो इन्वेस्टमेंट है उतनी ही हमारी लाइबिलिटीज है, उससे ज़्यादा नहीं है, तो एक अच्छा रहेगा। तो शेयर होल्डर के लिए अनलिमिटेड के अंदर क्या होता है, अनलिमिटेड लाइबिलिटीज में कि सपोज आपने कोई कंपनी के शेयर परचेस किए और उसकी जो लाइबिलिटीज हैं वो एसेट से भी बढ़ गई और कंपनी इनसॉल्वेंट हो गई, तो जितने भी शेयर होल्डर्स हैं उनको उनकी पर्सनल प्रॉपर्टी बेचनी पड़ेगी और वो लाइबिलिटीज पे करनी पड़ेगी। बट एज पर इंडियाज कंपनीज एक्ट 2018 ऑल द शेयर कैपिटल कंपनीज शेयर होल्डर्स लिमिटेड देयर लाइबिलिटीज इज लिमिटेड। इंडिया के अंदर रूल्स है कि जो भी कंपनी है जिसने शेयर इश्यू किया है वो सभी जो कंपनी है उनके जो शेयर होल्डर हैं उन सबकी लाइबिलिटीज जो है वो लिमिटेड ही रहेगी। मतलब कंपनी के
लाइबिलिटीज पे करने के लिए आपको पर्सनल प्रॉपर्टी बेचने की रिक्वायरमेंट नहीं है, तो आपकी लाइबिलिटीज लिमिटेड है, वो इंफॉर्मेशन मिल सकती है। फोर्थ, फॉर पब्लिक एट लार्ज, एनी पर्सन गेट preliminary information for investing money in any company from its memorandum of association. He can also get a copy of the memorandum. So memorandum of association is useful for public, क्योंकि अगर पब्लिक को कंपनी के अंदर अमाउंट इन्वेस्टमेंट करना है तो कोई भी इन्वेस्टर है वो पहले जानना चाहेगा कि कंपनी की इकोनॉमिकल कंडीशन कैसी है, वो जानना जरूरी है। कौन कंपनी के डायरेक्टर्स हैं वो जानना भी ज़रूरी है। कंपनी का वर्क है वो कितने सालों से चल रहा है वो जानना जरूरी है। तो आपको जो बेसिक इंफॉर्मेशन चाहिए वो आपको मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन मिल जाएगी। अभी तो सभी कंपनी की खुद की एक वेबसाइट है, उसके अंदर सब डेटा उसने डाला हुआ है, वहाँ से आपको यूज़फुल इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, तो आपको वो इंफॉर्मेशन वहाँ से मिल जाएगी। और अगर कोई शेयर होल्डर को वो इंफॉर्मेशन डाउनलोड करनी है तो कंपनी की ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड कर सकता है, या उसकी जो रजिस्टर ऑफिस है वहाँ जाकर उसकी कॉपी भी उसको मिल सकती है। तो वो पब्लिक डिसाइड कर सकती है कि भाई कंपनी के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या नहीं। सो हियर इम्पोर्टेंस ऑफ कंपनी, importance of memorandum for company purpose, for the creditors, for shareholders, for public at large.